Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering in the college associated with AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the thermodynamics, the subject of BTech third semester, Mechanical Engineering branch for AKTU syllabus. In my previous lecture, I have already talked about first law of thermodynamics, about the concept of entropy, about availability, about non-availability, about Rankine cycle and some basic fundamental of refrigeration. Continuing my lecture on refrigeration process, today I am going to have a basic, today we are going to have a discussion basically on the refrigeration process, refrigeration cycle, fundamental of refrigeration. See, basically the refrigeration process is achieved by one of these three processes. The first one is the melting of solid, the second one is the sublimation and the third one is the evaporation of liquid. In melting of solid, what will happen? The certain amount of heat is absorbed from the space required for cooling, the substance get converted into liquid form from solid form when melting will take place. So, by the melting process, the certain amount of heat was absorbed from the space required for cooling. In this way, the refrigeration was achieved. But the substance which we are using for these three, they must have some specific properties in the sense the refrigeration properties, so that the refrigeration will take place. In second process, the sublimation of the process, the sublimation of solid is the process in which the solid get directly converted into vapor form when the certain amount of heat is given to the solid at particular temperature. So, if the solid take place, if the phase transformation between the solid and vapor take place, what will happen? The certain amount of heat was absorbed from the space required for cooling and the space from where the heat was extracted, that was cooled or refrigeration effect was produced in that space. So, we can say that in case of sublimation of solid, the refrigeration process will take place. Evaporation of liquid, this is the mostly used the process, this is the mostly used process to create refrigeration. What will happen? If liquid get converted into vapor, that means vaporization will take place. Now, when vaporization will take place, what will happen? The certain amount of heat is absorbed from the space, so that the liquid get converted into vapor, and that amount of heat which was extracted, that must be known as the latent heat of vaporization. So, we can say that if the certain amount of heat is absorbed from the space required for cooling, so if that amount of heat is used to transform the phase from liquid to vapor form, so we can say the kind of vaporization will take place. At the same time, the refrigeration effect is also produced in the space from where the heat was extracted. यानी अगर कोई स्पेस आपको गिवन है, लिक्विड गिवन है, यहाँ पर कुछ हीट कंटेंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है, मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो होगा क्या? ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए एज ए हीट का वर्क करेगा, तो होगा क्या? इट विल एब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द स्पेस, दिस स्पेस, यहाँ स्पेस से सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा. होगा क्या? जैसे ही हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इसका फेज ट्रांसफॉर्म होगा. अगर बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है तो, अगर बॉइलिंग पॉइंट के इन टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो, देन इसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा लिक्विड से वेपर की तरफ. द फेज ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट. नाउ in this condition, the certain amount of heat was absorbed, that must be equal to the latent heat of vaporization. Latent heat, that must be equal to the latent heat of vaporization. यानी वो हीट हमारी कहलाएगी latent heat कहलाएगी, जिसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड से वेपर की तरफ. तो ये लेटेंट हीट, इस लेटेंट हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा, जहाँ से एब्जॉर्ब करेगा उस स्पेस को ठंडा कर देगा, यानी वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा.
तो हम लोग ये कहेंगे कि जो कूलिंग प्रोसेस है वो बेसिकली अचीव हो गया है विथ द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बेसिकली ये प्रोसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी हाईली एफिशिएंसी के टर्म्स में बात करें, ईजीनेस की बात करें तो काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं यहाँ पे लिक्विड वेपोराइजेशन में, जिससे कि हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट काफ़ी ईजिली हमें प्रोड्यूस हो जाता है। इसलिए इन तीनों में सबसे ज़्यादा यूज़ जो हम लोग करते हैं वो इस प्रोसेस को करते हैं। रेफ्रिजरेंट जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली जो एब्जॉर्ब करता है हीट हमारा, तो वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में ही होता है, जिसमें फेज और ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका लिक्विड से वेपर के फॉर्म में। रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बहुत सारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट विच इज़ यूज टू क्रिएट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी जो भी कंपोनेंट्स जिनका अरेंजमेंट जो होगा वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाएगा, विच इज़ यूज टू क्रिएट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सिंपली, यानी जो कंपोनेंट जो अरेंजमेंट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसे हम लोग कहेंगे दिस इज रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब वो कंपोनेंट्स बहुत से हो सकते हैं, रेफ्रिजरेंट बहुत से हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो सकती हैं, कंपोनेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, जिससे हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो अलग अलग होने की वजह से ये बहुत से हमारे पास सिस्टम अलग अलग अवेलेबल हैं, जिसको यूज़ करके हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला है आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सिंपली आइस का यूज़ करके हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमको प्रोड्यूस करना है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे दिस इज आइस रेफ्रिजरेशन। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, air refrigeration system is basically the refrigeration system which is used to create refrigeration effect using air as a refrigerant, यानी यहाँ पर हम जनरली air as a refrigerant यूज़ करते हैं, जिससे कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, कूलिंग इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे क्या होता है कि इसके कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, जिसकी वजह से जो फ्लाइट होती है हमारी, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, वहाँ पर जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, फ्लाइट में जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, फ्लाइट में जो एसी चलता है वो बेसिकली एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है हमारा। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि इस सिस्टम का वेट काफ़ी कम होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ इसका हम लोग करते हैं फ़्लाइट के केस में, क्योंकि फ़्लाइट के केस में हम लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर को जो ध्यान रखने वाली बात है वो सिर्फ ये है कि उसका वेट हमको कम से कम रखना है। तो जाहिर सी बात है वेपर कंप्रेशन या कोई भी दूसरा सिस्टम अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी हैवी वेट होते हैं, जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लोग बाकी रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स इन जनरल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं फ़्लाइट के केस में या एयरक्राफ्ट के केस में। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसीलिए क्योंकि वहाँ उसका वेट हमको कम से कम रखना है, और इन सब में जो कम से कम वेट होता है जिस कंपोनेंट का, जिस अरेंजमेंट का, उसको हम कहेंगे दिस इज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसीलिए सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट में जो यूज़ करेंगे हम लोग वो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम लोग यूज़ करेंगे, और जहाँ पर एयर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ होगी हमारी। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो अपार्ट फ्रॉम एयरक्राफ्ट, अगर एयरक्राफ्ट की बात हम लोग ना करें तो हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग के घरों में जो एयर कंडीशनर हम लोग यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रिज हम लोग यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे जो रेफ्रिजरेशन होता है, एयर कंडीशनिंग होती, इन सारे केसेस में जो सबसे ज़्यादा जो सिस्टम रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ होता है वो हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सबसे ज़्यादा हाईली एफिशिएंट, सबसे ज़्यादा इजी अवेलेबल, अगर रेफ्रिजरेंट के केस में हम लोग बात करें तो उसका रेफ्रिजरेंट जो है सबसे ईजिली अवेलेबल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द सिस्टम, और इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस होता है। ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस है वो हम लोग के रीच में होता है, यानी ह्यूमन बींग के रीच में काफ़ी आसानी से होता है विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द सिस्टम। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज़ सबसे ज़्यादा हम लोग घरों में, इंडस्ट्रियल लेवल पे, या जहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का करेंगे, इसकी एफिशिएंसी, इसकी परफॉर्मेंस और इसकी अवेलेबिलिटी की वजह से। वेपर, हाँ, अगर वेपर कंप्रेशन के और भी डिटेल में थोड़ा सा बात करें तो हम लोग देखेंगे इसके वेरियस कंपोनेंट्स हैं। वेरियस कंपोनेंट्स में कंप्रेसर आता है, आपका एवेपोरेटर आता है, कंडेंसर आता है और एक्सपेंशन डिवाइसेस आते हैं। तो इन सब का अरेंजमेंट एक
इस तरीके से करते हैं कि एक प्रोसेस, एक साइकिल एक कंप्लीट हो जाए, और इसमें जो रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज़ करते हैं R22 यूज़ कर सकते हैं, R134A यूज़ कर सकते हैं, और भी कंपोनेंट और भी रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़, जिससे कि हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस हो और कूलिंग इफेक्ट हमको मिल जाए। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात करेंगे आगे के लेसन में कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से प्रोसेस इसमें होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं, उन कंपोनेंट को अरेंज कैसे किया जाता है, TS डायग्राम कैसे बनता है, PV डायग्राम कैसे बनता है, टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, एंट्रोपी कैसे चेंज होती है, एंथैल्पी कैसे चेंज होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे आगे क्लासेस में, क्योंकि ये हमारे बीटेक थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये एक तरीके का मॉडिफिकेशन है वेपर कंप्रेशन का। वेपर कंप्रेशन में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग कंप्रेसर यूज़ करते हैं टू कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेशर उसका बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। काफ़ी डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसा ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे कंप्रेसर यूज़ करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रेफ्रिजरेंट के केस में, लेकिन यहाँ पर हम लोग कंप्रेशर का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो कंप्रेसर है वो यूज़ नहीं करते, उसकी जगह हम लोग यूज़ करते हैं एब्जॉर्बर यूज़ करेंगे, जनरेटर यूज़ करेंगे, और एक्सपेंशन वॉल्व यूज़ करते हैं, और भी कुछ डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंप्रेसर। पंप हम लोग यूज़ करेंगे। ये सारे कंपोनेंट्स मिला करके कंप्रेसर को रिप्लेस कर देते हैं वेपर कंप्रेशन के कंपैरिजन में। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कंप्रेसर यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग कंप्रेसर के बजाय कुछ और कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे। क्या क्या बताया हमने? एब्जॉर्बर, जनरेटर, एक्सपेंशन डिवाइस और या हीट एक्सचेंजर भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो कलेक्टिवली यूज़ करेंगे, ये सारे कंपोनेंट्स कंप्रेशन ही क्रिएट करेंगे, लेकिन कंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कंप्रेसर का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन में। यहाँ पे अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट इन जनरल यूज़ करते हैं हम लोग, या एक्वा अमोनिया सोल्यूशन, जिसमें एक्वा का मतलब वाटर और अमोनिया का मिक्सचर हम लोग यूज़ करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट के केस में। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे क्लासेस में और देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कंप्रेसर यूज़ करेंगे और यहाँ पे कंप्रेसर यूज़ नहीं करेंगे, और भी इसका अरेंजमेंट जो है आगे क्लास में हम लोग देखेंगे। और भी स्पेशल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कैस्केड, मिक्स, वोर्टेक्स, थर्मोइलेक्ट्रिक, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इन सब के बारे में ज़रा डिटेल बीटेक लेवल पे इतना हम लोग को ज़रा डिटेल इसमें पढ़ने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन सब के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सारे सब्सटेंस एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। दिस इज द फैक्ट, दैट मीन्स every substance cannot be used as a refrigerant. Only those substances can be used as a refrigerant which are having some specific properties in terms of refrigeration. यानी रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी होंगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो जब उस सब्सटेंस में होगी तभी उसको एज ए रेफ्रिजरेंट हम लोग वर्क कर सकते हैं, जिससे कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस अच्छे से हो और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए कम से कम। सबसे पहले हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन टू गेट मोर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। एग्जैक्टली होता क्या है, मान लीजिए ये कोई रेफ्रिजरेंट है, लिक्विड के फॉर्म में है, और लिक्विड के फॉर्म में ये जब चेंज होगा वेपर के फॉर्म में होगा, यानी वेपोराइजेशन प्रोसेस जब होगा तो इट विल एक्सट्रैक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। दिस लिक्विड वेपर एक्सट्रैक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। अब कंडीशन अलग अलग होगी, प्रेशर टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए, सैचुरेशन प्रेशर अलग अलग होना चाहिए, उसकी कंडीशन के बारे में हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक देख लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्यों ज़्यादा होनी चाहिए। लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, लिक्विड चेंज होगा वेपर के फॉर्म में। अब ये वेपर के फॉर्म में बन गया, जो अमाउंट ऑफ हीट इसने एब्जॉर्ब किया that is known as latent heat of vaporization. That means the latent heat of vaporization is the amount of heat required to change the phase at constant temperature. Constant temperature पे ये phase change इसका हो गया लिक्विड से वेपर के फॉर्म में।
यानी जो हीट को एब्जॉर्ब किया इस कंडीशन में कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन में लिक्विड से वेपर की तरफ, उस हीट को हम लोग कहेंगे दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बिकॉज द काइंड ऑफ प्रोसेस टेक प्लेस दैट इज नोन एज वेपोराइजेशन। ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसको हम वेपोराइजेशन कहेंगे, जो अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होने पे, इसको हम कहेंगे दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब जाहिर सी बात है ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ये रिस्पॉन्सिबल होती है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए। जहाँ से ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा उस स्पेस को ठंडा कर देगा, यानी इतनी अमाउंट ऑफ हीट ये उसने वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। जाहिर सी बात है अगर ये अमाउंट ऑफ हीट अगर ज़्यादा होगी तो उस रूम से जिसको उसको ठंडा करना है वहाँ से ज़्यादा अगर वो हीट निकालेगा तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर, बाहर रूम का टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा कम होता चला जाएगा, यानी जो कूलिंग इफेक्ट है हमारा उतना ही अच्छा होगा, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है हमारा उतना ही अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। या हम लोग ये कहें कि कूलिंग इफेक्ट अच्छे से अच्छा तभी होगा जब लेटेंट हीट की वैल्यू हमारे ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अगर लेटेंट हीट की वैल्यू कम होगी तो जाहिर सी बात है फेज ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट ये एक्सट्रैक्ट करेगा, और कम अमाउंट ऑफ हीट वो एक्सट्रैक्ट करेगा तो जहाँ पर से हमको हीट निकालनी है वहाँ पर उतना कूलिंग इफेक्ट हमको नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि लेटेंट हीट की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए इस लिक्विड इस रेफ्रिजरेंट के लिए, सो दैट the refrigeration effect must be higher, or we can say the cooling effect will effectively take place, यानी कूलिंग इफेक्ट अच्छे से अच्छा हो और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा अच्छे से अच्छा हो। दैट मीन्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मस्ट बी वेरी हाई, यानी इस रेफ्रिजरेंट के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। कम होगी तो हीट कम से कम एक्सट्रैक्ट करेगा तो उतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा नहीं होगा। लार्ज कंडक्टिविटी टू रिड्यूस द साइज ऑफ कंडेंसर एंड इवेपोरेटर। कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। अगर कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, हीट की कंडक्टिविटी अगर अच्छी नहीं होगी तो हीट को एब्जॉर्ब करने में उसको प्रॉब्लम आएगी। या हीट जब कंडेंसर के केस में जब हीट रिजेक्शन होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। कंडक्टिविटी अगर अच्छी होगी तो ज़्यादा ईजिली हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और ज़्यादा ईजिली हीट को रिजेक्ट कर देगा कंडेंसर में, इवेपोरेटर में। और इवेपोरेटर की अगर हम लोग बात करें तो अच्छे से बहुत ईजिली द हीट विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग इन केस ऑफ रेफ्रिजरेंट। यानी रेफ्रिजरेंट जो है कंडक्टिविटी अच्छी है उस केस में जल्दी से वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा जहाँ से हमको कूलिंग चाहिए और वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। कंडेंसर की अगर हम लोग बात करें तो कंडेंसर के केस में क्या होता है कि हीट को रिजेक्शन होता है, द सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग। तो जाहिर सी बात है हीट को रिजेक्शन अगर अच्छा करना है तो कंडक्टिविटी हमें अच्छी करनी पड़ेगी जिससे कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा अमाउंट में हीट का रिजेक्शन हो सके। यानी हीट की कंडक्टिविटी हमारी अच्छी होनी चाहिए रेफ्रिजरेंट के केस में। लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, स्पेसिफिक वॉल्यूम कम से कम होना चाहिए जिससे कि साइज में कम से कम यूज़ हो सके। लो फ्रीजिंग पॉइंट सच दैट देयर इज़ नो ब्लॉकेज ड्यूरिंग द फ्लो थ्रू इवेपोरेटर। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी कम होना चाहिए। होता क्या है कि इवेपोरेटर हम लोग यूज़ करते हैं, जब रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में फ्लो करता है तो एक तरफ तो लिक्विड, अगर मान के चलिए ये पाइप है, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे होता क्या है ये वेपर में बदल जाता है। Liquid refrigerant get converted into vapor refrigerant by absorbing certain amount of heat which must be equal to, which is known as the latent heat of vaporization. The kind of vaporization take place in the sense the transformation of phase from liquid phase to to vapor phase take place in this condition. So we can say the kind of vaporization process take place, and in vaporization process the certain amount of heat is extracted from the space required for cooling, that must be equal to the latent heat of vaporization. अब अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है तो होगा क्या कि हो सकता है कि इसी टेम्परेचर पे ये फ्रीज कर जाए, हो सकता है कि इसी टेम्परेचर पे फ्रीज कर जाए। मान लीजिए अगर -5 डिग्री सेंटीग्रेड वर्किंग कंडीशन है इसकी और इसका फ्रीजिंग पॉइंट 2 डिग्री सेंटीग्रेड है इस लिक्विड का, तो होगा क्या इस टेम्परेचर पे फ्रीज कर जाएगा। फ्रीज करने का मतलब क्या है, ये जो पाइप है हमारा इसमें फ्लो मेंटेन नहीं हो पाएगा। जब रेफ्रिजरेंट हमारा फ्रीज हो गया है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में यहाँ पे ये लिक्विड के बजाय
सॉलिड फेज में आ जाएगा, फ्रीजिंग स्टेट में आ जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और इस पाइप को ये ब्लॉक कर देगा। यानी इस पाइप को अगर ब्लॉक कर देगा तो अब रेफ्रिजरेंट का फ्लो साइकिल में नहीं हो पाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, यानी कूलिंग इफेक्ट हमारा होगा ही नहीं। इसलिए इस लिक्विड रेफ्रिजरेंट की या रेफ्रिजरेंट का फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी कम होना चाहिए। मान लीजिए -25 अगर होगा तो यानी इस टेम्परेचर पे ही जो इसकी फ्रीजिंग होगी, इस टेम्परेचर पे ही इसकी फ्रीजिंग होगी। जितना कम से कम होगा उतना टेम्परेचर फ्रीजिंग होगी, लेकिन इतना कम टेम्परेचर हमको जनरली अगर चाहिए नहीं है तो जाहिर सी बात है जो रेफ्रिजरेंट है हमारा, अगर मान लीजिए -5 पे है, -6 पे है, तो उस कंडीशन में फ्रीजिंग नहीं होगी, वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा और इसका फ्लो मेंटेन रहेगा। इस रेफ्रिजरेंट का फ्लो इस साइकिल में मेंटेन रहेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस होता रहेगा और जो साइकिल है हमारी परफॉर्मेंस ठीक रहेगी और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस होता रहेगा। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होना चाहिए ताकि रेफ्रिजरेंट जो है हमारा फ्रीज ना होने पाए, जिससे ब्लॉकेज हो जाएगा हमारे पाइप में। नॉन कोरोसिव, जाहिर सी बात है कोरोजन होगा तो कुछ डेप्रिसिएशन होगा, तो कोरोजन नहीं होना चाहिए। एंड इनर्ट सो एज टू नॉट रिएक्ट विद अदर मटेरियल एंड कमोडिटीज ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी जो रेफ्रिजरेंट है हमारा वो इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट इन द सेंस उसका रिएक्शन दूसरे कंपोनेंट्स के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ डेप्रिसिएशन होगा, कुछ मेटेलिक, अगर मेटल से वो रिएक्ट करता है तो जो अंदर के पाइप्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, उसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम आएगी और जो फ्लो है रेफ्रिजरेंट का उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, डिफ़र कर सकती है इसकी परफॉर्मेंस। तो इसीलिए हम लोग ये कहेंगे कि ये नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, इनर्ट होने चाहिए, यानी इसका रिएक्शन किसी भी कंपोनेंट से, किसी भी कमोडिटी से, किसी भी इक्विपमेंट या किसी भी पाइप से नहीं होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक होंगे। लो बॉइलिंग पॉइंट इनका काफ़ी कम होना चाहिए। अगर हम लोग हाई बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मान लीजिए अगर रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और हम लोगों ने ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज़ किया है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ही 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो होगा क्या? जाहिर सी बात है 25 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमको चाहिए और वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर बॉयल कर रहा है तो हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा ही नहीं, सीधी सी बात। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तो उसको लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए उसका रूम का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन हमें कितना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर जब तक 25 से 10 से नीचे 5 डिग्री सेंटीग्रेड या मान लीजिए 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा, तब तक कि उसमें वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, फेज चेंज नहीं हो पाएगा, बॉइलिंग नहीं हो पाएगी। तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका कम होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। नॉन फ्लेमेबल, नॉन एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए, इन नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, किसी भी तरीके का लॉसेस फ्लेम से रिलेटेड ना हो वहाँ पे। लो कॉस्ट एंड ईजिली अवेलेबल, जाहिर सी बात है कि अगर हाईली एक्सपेंसिव हमारा रेफ्रिजरेंट होगा तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स, अगर कंपोनेंट हमारे एक्सपेंसिव होंगे तो हमारे रीच से काफ़ी अलग चले जाएंगे या हमारी रीच में नहीं होंगे, तो उस केस में रेफ्रिजरेंट की जो कॉस्ट है वो हमारी कम से कम होनी चाहिए, ताकि इन जनरल सबकी रीच में जो रेफ्रिजरेटिंग जो इक्विपमेंट है वो सबकी रीच में आसानी से मिल पाए उसको। ईजिली अवेलेबल, मान लीजिए लीकेज हुआ किसी रेफ्रिजरेंट में, अगर वो इजीली अवेलेबल नहीं है किसी मार्केट में या कहीं भी इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर ही प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी इजी होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स आने के बाद या लीकेज होने के बाद उसको आसानी से रिप्लेस किया जा सके, उसको बाद में यूज़ किया जा सके। ईजी टू लिक्विफाई एट मॉडरेट प्रेशर एंड टेम्परेचर, लिक्विफाई आसानी से हो जाना चाहिए। अगर लिक्विफिकेशन आसानी से नहीं होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स उसमें आ जाएंगी और हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ईजी ऑफ लोकेटिंग लीक्स बाय ऑर्डर और सुटेबल इंडिकेटर, इसका मतलब ये है कि
लीक जो है आसानी से लोकेट हो जाने चाहिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि लीकेज हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर क्योंकि अगर हमें पता नहीं चलेगा तो हमें अगर उसके बारे में पता नहीं चलेगा तो लीकेज होता रहेगा, उसको हम लोग इंडिकेशन ना मिलने की वजह से उसको होते देंगे। तो इसीलिए उसका इंडिकेशन आसानी से मिल जाना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो रेफ्रिजरेंट जो होता है रिएक्ट कर रहा है या ऑडोर टाइप की, स्मेल टाइप की अगर उसमें आ रही है तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ चेंज होने की ज़रूरत है। उसको हम चेंज कर देंगे, उसका परफॉर्मेंस फिर से ठीक हो जाएगी। अगर हम लोग प्रिंसिपल के बारे में बात करें, अब हम लोग प्रिंसिपल के बारे में बात करें, रेफ्रिजरेशन प्रिंसिपल के, तो हम लोग देखेंगे जाहिर सी बात है हमारे पास 3 प्रोसेस थे। एक तो मेल्टिंग था, एक सब्लिमेशन था और एक वेपोराइजेशन था। तो इन जनरल हम लोग जो भी अब आगे क्लासेस में जो हम लोग बात करेंगे वो बेसिकली बात करेंगे रेफ्रिजरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पर बीटेक लेवल पे जो हम लोग पढ़ेंगे, जो साइकिल हम लोग पढ़ेंगे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। वहाँ पर हम लोग सिर्फ जो तीसरी कंडीशन हम लोगों ने देखी थी वेपोराइजेशन की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी बाकी के बारे में हम लोग यहाँ पर इन जनरल बात नहीं करेंगे। सो बेसिकली अगर प्रिंसिपल की बात करें तो वेपोराइजेशन के टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अचीव्ड बाय द लिक्विड वेपोराइजेशन इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द हीट in which it is absorb the heat from the space surrounding it, which is known as latent heat. यानी liquid is given to you and if the vaporization will take place, then what will happen? The liquid phase get converted into vapor phase. In that condition, the liquid will absorb certain amount of heat which is known as the latent heat of vaporization, and the process is known as vaporization. That means the process in which the phase of liquid refrigerant changes from liquid to vapor is known as vaporization, and in this vaporization process it will absorb certain amount of heat from the surrounding, which is known as latent heat of vaporization at the constant temperature. So, this is the basic principle which is used in refrigeration. This is the basic principle which is used in refrigerating component. So, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिर्फ वेपोराइजेशन के बारे में। अगर सपोज सिंपली एक लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपको दे रखा है, लिक्विड से वेपर में बदलेगा, वेपोराइजेशन होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, दैट काइंड ऑफ हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इस केस में हम लोग कहेंगे दिस इज नोन एज रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, जहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा उस स्पेस को ठंडा कर देगा और इस तरीके से हम लोग रेफ्रिजरेशन प्रोसेस अचीव होगी। तो बेसिकली हम लोग बात करें कि रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के पीछे प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल इज बेसिकली वेपोराइजेशन, यानी लिक्विड जब वेपोराइजेशन होगा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जहाँ से एब्जॉर्ब करेगा उस स्पेस को ठंडा कर देगा और खुद में चेंज हो जाएगा, यानी लिक्विड से वेपर के फॉर्म में बदल जाएगा और जितने अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा दैट मस्ट बी इक्वल, दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम लोग बात करें कि वेपोराइजेशन पेट्रोल, वेपोराइजेशन ऑफ स्पिरिट, अगर हम लोग अपने हाथ में पेट्रोल ले लें तो हम लोग देखेंगे कि वेपोराइजेशन वो वेपर में बदल जाता है, वेपर में बदलने के बाद वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हमारे हाथ को ठंडा लगेगा, वो भी एक तरीके का रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं उनकी, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है रेफ्रिजरेशन का, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे क्लासेस में समझेंगे। तब तक धन्यवाद।